Hi everyone, in today's lecture we will start with unit number 2nd of our syllabus, which is known as a Laplace transform. Okay. So first of all, we learn what is meant by Laplace transformation and what is its use in the field of engineering. So in mathematics or engineering, we study a certain type of transform. Suppose we consider as a transform, so there are the certain various transformation which is listed in the field of engineering, which is named as Laplace transformation. Again, there is a transformation that is called the Fourier transformation, Hilbert transformation, Z transform. So these are the various transformation which is used in the field of engineering to solve a complex problem which is not solved easily by direct method. So from this transformation we will study the Laplace transformation. So what is meant by Laplace transformation? So suppose we have a two set of the function. This is the two set of the function. Suppose this one set contains all the function of variable t, and we operate on Laplace transformation on this set, we get a resultant of second set which contains all the function of s. Means one function is converted into another form by the use of some transformation, and that transformation is said to be a Laplace transform. Okay. The Laplace transformation, what is the role of Laplace transformation? Laplace transformation convert the function of t to the function of s. So this process of conversion, the process of conversion is known as a transformation. The process of conversion is known as a transformation, and the operator which transform the function of t to the function of f s is known as a transform. ओके जो प्रोसेस होती है कन्वर्शन की, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन. और जो ऑपरेटर, मतलब ये जो लाप्लास है, ये ऑपरेटर है. जो ऑपरेटर जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म. सो हियर द ट्रांसफॉर्म इज एल which convert a function of t into function of s. So therefore this L is called the Laplace transform. So this is the idea, basic idea about the transformation, what is by transformation and how Laplace transformation work. Okay. Now what is the use of Laplace transformation? So Laplace transformation is useful to solve the differential equation. Actually we learn how to find the complete solution of differential equation in unit number 1. We know that how to find the solution of differential equation. How to find the solution? We first find the complementary function and then find the particular integral, and adding these two we get the complete solution as complementary function plus particular integral. Okay. So when we observe the solution of complementary function, there is a constant C1, C2, C3 present, depends upon the order of equation. So Laplace transformation gives the value of complete solution without finding the arbitrary constant. क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम में कोई कंडीशन गिवन है तो उस कंडीशन का यूज करके आपको वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1, C2, C3 वो भी फाइंड करने होते हैं. लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा, आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट फाइंड करने के मेथड स्किप हो जाएंगे, आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा.
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन है। तो जब भी एप्लीकेशन का पार्ट आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसमें हम डिटेल्स में देखेंगे। नाउ वी कम्स टू द व्हाट इज मीन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। So let suppose f is a function. Of course, f is a function given in terms of t, that is f of t is piecewise continuous function. So what is meant by piecewise continuous? So we take the separate definition of piecewise continuous function. Defined for t is greater than or equal to 0 and it satisfies the certain condition. Then the Laplace transformation of f is defined as, so this is our formula, Laplace transformation of f of t is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt, limits from 0 to infinity. And this is the function of original, the function it is in the form of t, and we operate the Laplace on this f of t, we get the resultant function as f of s. Means Laplace convert the function of t into function of s, and the integral is given here. It is a improper integral. Improper integral. Now what is meant by improper integral? Improper integral means one or both limits are infinite. अगर इंटीग्रेशन की दोनों, एक या दोनों लिमिट्स अगर इनफाइनाइट है तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है, जो इंटीग्रैंड रहेगा, इंटीग्रैंड मतलब इंटीग्रेशन के अंदर की जो टर्म प्रेजेंट रहेगी, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रैंड। तो जो इंटीग्रैंड रहेगा वो क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा, विद इन लिमिट्स, विद इन द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो लिमिट है, ये जो रेंज है हमारी 0 टू इन्फिनिटी, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या रहेगा? इनफाइनाइट वैल्यू देगा हमको। तो वो इनफाइनाइट वैल्यू जब देगा तो इंटीग्रैंड की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी हम उस इंटीग्रल को क्या बोल सकते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोल सकते हैं। तो पहले तो जो फंक्शन है वो पीसवाइज कंटिन्यूस चाहिए आपको, और तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये हो जाएगी। और जहाँ पे इंटीग्रेशन का सवाल है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन क्या रहेगा? ये इम्प्रॉपर रहेगा। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब यहाँ पे मैंने बताया आपको कि दोनों लिमिट्स क्या रहेंगी? एक या दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट हो सकती है, या अगर ऐसा नहीं होगा तो इंटीग्रेशन के अंदर की जो टर्म है जिसको इंटीग्रेंड बोलते हैं हम, वो उसका नेचर इनफाइनाइट होगा विद इन दैट सर्टेन लिमिट्स। जो लिमिट के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर उसकी वैल्यू क्या रहेगी? इनफाइनाइट होगी। तो डिटेल में हम इसके दोनों के बारे में देखेंगे कि पीसवाइज कंटिन्यूअस और इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है। तो अभी सिर्फ आपको ये डेफिनेशन ध्यान में रखना है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या रहेगा? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt। तो जनरली जो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं एफ ऑफ एस, या कोई बुक में इसको ऐसा भी नोट किया है एफ ऑफ एस बार। तो दोनों सेम है, तो आप जो स्टार्ट करेंगे आखिरी तक आपको वैसे करना है। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एस यूज करेंगे। हमारा लाप्लास का रूल क्या है कि ओरिजिनल फंक्शन टी वेरिएबल में है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रोवाइड द इंटीग्रल एग्जिस्ट, मतलब ये वैल्यू तभी मिलेगी जब इंटीग्रल क्या रहेगा? एग्जिस्ट। अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट है मतलब फाइनाइट है, तो ये हमको आंसर मिलेगा। अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं है, फाइनाइट भी नहीं है, तो हमको आंसर मिलेगा नहीं। Note that the Laplace transformation is defined by an improper integral. अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन कौन सा है? improper, and thus we must check the convergence. So first we have to check the convergence of that integral, because there are the two types of convergence. We already studied in engineering maths 1 in sequence and series. There is a convergent and divergent about the sequence. So if the integral is convergent, then this exists. Integral exists, and if this term is divergent, then it does not exist. And to find the Laplace transformation, we must exist the integral. अगर इंटीग्रल एग्जिस्ट होगा तो ही हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा तो उसके लिए क्या होना? कॉन्वर्जेंस की कंडीशन आपको चेक करना है। जनरली वैसे चेक नहीं करना है, वो ऑलरेडी वैसे सेटिस्फाई करेगा ही, लेकिन अगर डिटेल में हमको स्टडी करना है तो वो वहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? पहले तो वो पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए आपको एफ ऑफ टी,
और उसका लाप्लास जो है इस फार्मूले से डिफाइन होगा, जहाँ पर ये इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इम्प्रॉपर रहेगा और ये एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब ये कॉन्वर्जेंस होगा तो ही ये एग्जिस्ट होगा, और जो आपको इसका फिर आंसर मिलेगा वो क्या रहेगा, हमारा रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. On the next slide, we reviewed some example of improper integral. So we just discussed the example of improper integral, means what is meant by improper integral and how to solve that improper integral. Consider the following improper integral. So integral is given by integration 0 to infinity e to the power st dt. Now, how it is improper integral? How we define this is an improper integral? So actually the limit is infinity. So it is the improper integral. So how can evaluate this improper integral? So कैसे इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे यहाँ पे देखेंगे. तो इसको इंटीग्रेशन को हमको फाइंड करना है. तो हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 to infinity e to the power st dt. ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो लिमिट है इन्फिनिटी, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल पुट करता हूँ b, और b की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट दे दी, लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी. और पहले हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 0 to b e to the power st dt. नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e to the power ax, अगर हमको इंटीग्रेशन ऑफ e to the power ax निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ e to the power ax क्या रहेगा, e to the power ax अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज a. तो इंटीग्रेशन ऑफ e to the power st क्या रहेगा, e to the power st अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t इज s, लिमिट फ्रॉम 0 to b, limits b tends to infinity. Okay, 1 upon s is constant because the limit is vary for t, so limit is applicable only for t. Putting the upper limit we get sb, and lower limit e to the power 0, that is 1. Okay, now we know that b tends to infinity. Okay, so when it depends upon the value of s. Now everything is depends upon the value of s. So suppose we discuss two cases. Note that if s is equal to 0, so suppose we consider s is equal to 0. So when s is equal to 0, so this limit becomes a to the power 0b. Okay, and a to the power 0b is 1, so we get the 1. So 1 minus 1 is 0. Thus we get the following two cases. First step is a to the power 0 to infinity e to the power st dt is equal to minus 1 upon s if s is less than 0. Now what is mean by less than 0? एक्चुअली यहाँ पे क्या देखना है आपको, s इक्वल टू 0 जो अगर होगा तो s इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो ये तो हो गया e टू द पावर 0b, मतलब 1, 1 माइनस 1 इज 0, ये तो 0 मिल गया आपको. लेकिन यहाँ पे s की वैल्यू 0 तो 1 अपॉन 0, तो ये भी इन्फिनिट हो गया, मतलब ये वैल्यू इन्फिनिट मिल गई आपको. तो फिर हमको 0 तो रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर. फिर हमको देखना है कि s की वैल्यूज अगर 0 से लेस होगी तो क्या होगा और 0 से ग्रेटर होगी तो क्या होगा. अगर s की वैल्यू 0 से लेस है, 0 से लेस है मतलब क्या होगा, s की वैल्यू 0 से लेस है मतलब s क्या रहेगा, s इज नेगेटिव, बराबर, s इज नेगेटिव. तो s अगर नेगेटिव होगा मतलब s इस फॉर्म में होगा e टू द पावर माइनस एस बी, इस फॉर्म में इसका नेचर रहेगा. ये जो अंदर की टर्म है ये इस टाइप में रहेगी, e टू द पावर माइनस एस बी माइनस 1. क्योंकि s की वैल्यू नेगेटिव है मतलब s की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 समथिंग. उसके बाद अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं b के लिमिट्स, तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखने के बाद क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी. और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना रहता, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1, सॉरी 0, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0. तो इसकी वैल्यू मिल गई आपको 0. तो 0 माइनस 1 कितना बचेगा, माइनस 1. माइनस 1 इंटू 1 बाई एस इज माइनस 1 बाई एस, मतलब आपको फाइनाइट आंसर मिल गया. तो ये फाइनाइट आंसर मिल गया मतलब ये इंटीग्रल जो है ये कॉन्वर्जेंट हो गया. इस कंडीशन के लिए, किस कंडीशन के लिए, s क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा तो ये कॉन्वर्जेंट होगा. लेस देन 0 मतलब इट्स हैज अ नेगेटिव वैल्यू, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या रहता है, हमेशा 0 होता है, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी. अभी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं है,
इक्वल टू 0 होगा तो ये 1/0 इज इनफाइनाइट, मतलब वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब ये डाइवर्जेंस होगा, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। बाद में प्रॉब्लम है अभी s इज ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो क्या होगा, मतलब s अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो s अगर पॉजिटिव है तो ये आपको इसी टर्म मिल जाएगा a⁻sb-1, और अगर b के जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे हम तो हमको मिलेगा यहाँ पे e⁻∞, और e⁻∞ कितना होता, इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मिल गया आपको इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इज इन्फिनिटी, मतलब कभी भी आपको वैल्यू क्या मिल गई, इन्फिनिटी मिल गया। मतलब जब x इज इक्वल टू 0 होगा और s पॉजिटिव होगा तो आपको इंटीग्रेंड की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे इन्फाइनाइट मिलेगी, मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। मतलब ये कॉन्वर्जेंट कब है, सिर्फ अगर s इज इक्वल टू नेगेटिव है तो ऐसा होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन सॉल्व करना। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन तभी एग्जिस्ट होगा जब वो कॉन्वर्जेंट रहेगा, और जो अगर इन्फाइनाइट है तो वो क्या रहेगा, डाइवर्जेंट होगा। और अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जिस रेंज में वैल्यू एग्जिस्ट है वहीं पर ही हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको इस टर्म का अगर यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे डाइवर्जेंट हो गया। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कॉन्वर्जेंट होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट है। तो इट इज एग्जाम्पल फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब क्या होता है ये हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट इज we take another example, improper integral, integration 0 to infinity st cos t dt। इसको इंटीग्रेशन को हमको इवेलुएट करना है। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो यहाँ पे क्या किया, st cos t, तो s तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे t इंटू cos t, ये है t का फंक्शन, और दो टर्म का प्रोडक्ट है, दो टर्म का प्रोडक्ट है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे हम। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, sin t, यहाँ पे लिमिट दे दी, माइनस इंटीग्रेशन रहेगा s एज इट इज है, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, और cos t का इंटीग्रेशन हो गया sin t dt। और यहाँ पे भी हमने किया 0 टू b, इन्फाइनाइट लिमिट है तो इन्फिनिटी की जगह पे मैंने 0 दे दिया, और लिमिट b टेंड्स टू क्या किया, इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन अगेन s कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया, और sin t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस cos t, तो ये प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमको लिमिट पुट करना है, तो लिमिट अगर हमने पुट कर दिया, अपर लिमिट t की है b, तो यहाँ पे मिलेगा आपको एस बी साइन बी, 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी अपर लिमिट b है तो ये आएगा s cos b बराबर, और t की लिमिट 0 पुट करेंगे तो cos 0 मतलब 1, तो आपको ये मिलेगा। अभी इसका अगर यूज करेंगे हम, सिंस द लिमिट डाइवर्जेस सो दैट्स द ओरिजिनल इंटीग्रल। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिमिट्स क्या है इसकी, डाइवर्जेंस है। कैसे डाइवर्जेंट है, b की लिमिट से इन्फानाइट, अगर यहाँ पे इन्फानाइट पुट करते हैं हम तो इन्फानाइट साइन इन्फानाइट, तो ये इन्फानाइट हो जाएगा, और कॉस इन्फानाइट भी क्या रहेगा, या ये इन्फानाइट होने के बाद ये वैल्यू अगर कुछ भी होती है बराबर है, साइन इन्फिनिटी, साइन की वैल्यू मालूम है आपको, रेंज क्या रहती है साइन की, -1 टू +1, तो कुछ भी रेंज होगी। अगर साइन इन्फाइनाइट वैल्यू है तो इसकी रेंज तो -1 टू +1 होगी, मतलब कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। लेकिन b अगर इन्फाइनाइट हो गया तो b इन्फाइनाइट इनटू एनीथिंग इज इन्फाइनाइट, यानी इन्फाइनाइट प्लस समथिंग इज इन्फाइनाइट, मतलब आपको लिमिट क्या मिलेगी इसकी, इन्फाइनाइट मिलेगी, और इन्फाइनाइट मिलेगी मतलब ये क्या लिमिट्स होगी, डाइवर्जेंस होगी, बराबर है। तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्जेंस है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब निकलेगा नहीं उस रेंज के लिए। तो ये हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एग्जांपल। नेक्स्ट देखेंगे हम पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन मतलब जो भी रेंज है आपको उस सभी रेंज में वो फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस फंक्शन। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन मतलब क्या रहे, कहाँ पे वो फंक्शन जो रहेगा ना, कहीं कहीं पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है, मतलब उसको कहाँ पे डिसकंटिन्यू की जंप हो सकती है वहां पर। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे तो देखिए यहाँ तक जो फंक्शन है ना ये कंटिन्यूस है, फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, फिर ये ब्रेक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है। तो ये जो ब्रेक हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इस दोनों रेंज में ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे एक जंप है डिसकंटिन्यूअस की। तो अगर फंक्शन की उस रेंज में किसी पॉइंट पर आपको अगर डिसकंटिन्यूटी जंप रहती है, मतलब वो पूरा कंटिन्यूअस नहीं है, देयर आर द सर्टन
discontinuity, jump of discontinuity, so this function is said to be a piecewise continuous function. So function f is a piecewise continuous on an interval ab if this interval can be partitioned by the finite number of points. तो ये जो इंटरवल है ए बी, इसको हमने क्या किया, पार्टीशन किया t1 t2 अल्फा बीटा इस नंबर में. तो इस रेंज में क्या है, कुछ रेंज में मतलब ए रेंज में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. फिर सेकंड रेंज में क्या है, वहां पे एक जंप है डिसकंटिन्यूअस की, लेकिन उसी पॉइंट पे जंप मारा उसने, यहाँ से यहाँ तक थोड़े हायर लेवल हायर वैल्यू ले लिए, लेकिन वहां से कंटिन्यू हुआ. फिर यहाँ पे कंटिन्यूस होने के बाद यहाँ पे जंप ले डिसकंटिन्यूस की, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है लेकिन जंप होने के बाद ये कंटिन्यूस हो गया. तो इस रेंज में अगर उसको आप बोल सकते हैं पीसवाइज कंटिन्यूस कब, देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटीज. The function is continuous except the finite number of jump discontinuities. कुछ discontinuities jump जहाँ पे होगी वो छोड़ के अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको दो चीजें मालूम चाहिए कि पीसवाइज कंटिन्यूस मतलब क्या होगा और इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे होता है. तो वो दोनों फंक्शन हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिए. ठीक है. सो एक एग्जांपल लेंगे हम पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन का क्या होता है. सपोज आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी और हमारी रेंज है 0 to 3. तो इसको सेपरेट किया तीन पार्ट्स में क्योंकि अलग अलग वैल्यूज मिल रही है आपको. तो पहला फंक्शन है टी स्क्वायर. टी स्क्वायर मतलब क्या है, सपोज अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने कंसीडर किया तो ये किसका इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो ये पैराबोला है. तो यहाँ पे देखिए ये पैराबोला आ गया पहला. ये क्या है, 3 माइनस टी, ये लाइन है. तो ये लाइन आ गई, यहाँ पे प्लॉट कर दी हमने. अभी लाइन प्लॉट करना वो डिटेल में देखेंगे हम, ऐसे लाइन प्लॉट करेंगे तो आप यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी. और t+1 क्या है, एक अगेन एक लाइन है जो यहाँ से इस नेचर की रहेगी. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस है. यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप तो भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. ओके. तीनों रीजन में फंक्शन कंटिन्यूअस है. यहाँ से यहाँ तक जो है इसको क्या बोलेंगे हम, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. और यहाँ से यहाँ तक जो है इसको भी क्या बोलेंगे हम, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज. मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट देयर आर द सर्टेन पॉइंट वेयर द जंप इन डिसकंटिन्यूटीज ऑकर्स. तो फंक्शन अगर पूरा कंटिन्यूअस होगा तो उसको तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन ही बोलेंगे, लेकिन हमको देखना है कि पीस वाइज कंटिन्यूअस मतलब क्या है. तो पीस वाइज कंटिन्यूअस मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे जहां पर डिसकंटिन्यूस रहेंगे. मतलब जब डिसकंटिन्यूस में एक थोड़ी जंप लेकर वो डिसकंटिन्यूस बन जाएगा तो जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं उसको. तो वहां पे जंप डिसकंटिन्यूस है सर्टेन पॉइंट पे और वो छोड़ के जो भी पॉइंट है वहां पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है. तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, पीस वाइज कंटिन्यूस. तो एक एग्जांपल हो गया है पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का. सो now we actually start with our main topic, that is a Laplace transformation. So to solve the problems by using Laplace transformation we need a certain result. तो रिजल्ट जो है वो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं. मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि उसको प्रूव भी कैसे करना है. अगर आपको प्रॉब्लम आया कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिस्टम तो आपको निकालना भी चाहिए कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं. तो वी कंसीडर द फर्स्ट रिजल्ट. इफ f of t is equal to 1, f of t is equal to 1, then the Laplace transformation of f of s is, okay, so we have to given the value of f of t is equal to 1 and we have to find the Laplace transformation of f of t. Now you always use a definition to find this type of Laplace transformation. और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आप डायरेक्ट आपको याद रखना है क्योंकि इसके आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको वो वैल्यूज डायरेक्ट वहाँ पे यूज करनी पड़ेगी. ठीक है. तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, बाय यूजिंग अ डेफिनेशन. सो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन हम लिखेंगे हम. सो वी नो दैट Laplace transformation of f of t. So what is the Laplace transformation of f of t? Integral 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. So Laplace transformation of f of t. What is the value for f of t? The value of f of t is equal to 1. So put the value of f of t is equal to 1. So e to the power minus st 1 dt.
यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू वन इज e टू द पावर माइनस एस टी डी टी 0 to infinity. Now we know that what is the integration of e to the power ax? Integration of e to the power ax is e to the power ax upon a. Coefficient of x is a. तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी इज e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t इज माइनस एस. लिमिट क्या है इसके, 0 टू इन्फिनिटी है. तो यहाँ से माइनस वन अपॉन एस को हम बाहर ले लेंगे. क्यों बाहर लेंगे? क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो टी पे है, तो लिमिट जो रहेंगी वो टी की रहेंगी. तो एस तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू लिमिट, तो उसको बाहर ले लेंगे. अभी लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे आप, तो e टू द पावर माइनस यहाँ पे एज इट इज, और s इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा आपका इन्फिनिटी माइनस t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर 0. ठीक है, सो माइनस वन अपॉन एस. नाउ e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू रहेगी 0, और e टू द पावर 0 अगर होगा तो इसकी वैल्यू रहेगी 1. और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 1/s माइनस माइनस प्लस. तो आपका जो पहला रिजल्ट है वो जो रिजल्ट आएगा हमारा, फर्स्ट रिजल्ट इज लाप्लास ऑफ 1 अपॉन लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s. तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है सॉल्व करने के लिए. जब भी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, और अगर कहीं पर आपको टर्म मिलेगी कि लाप्लास ऑफ 1, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, 1/s. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट. सभी रिजल्ट जो प्रूव करेंगे हम बाय यूजिंग डेफिनेशन प्रूव करेंगे. ये जो है ये क्या है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एंड बाय यूजिंग अ डेफिनेशन वी सॉल्व ऑल द रिजल्ट व्हिच इज यूज्ड इन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. तो वी कंसीडर द सेकंड, f of t is equal to e to the power at. So here f of t is given by e to the power at, and again we use a definition to evaluate this Laplace. So Laplace of, again we know that f of t, so Laplace of f of t is given by integral 0 to infinity e to the power minus st into f of t into dt. So we put f of t is equal to e to the power at. So when we put f of t is equal to e to the power at, we get integral 0 to infinity e to the power minus t e to the power at dt, which is equal to integral 0 to infinity. Now here we observe that the base is the same. When the base is same, there is a addition in power. So e to the power minus st plus at dt, which is equal to integral 0 to infinity. We can write this as e to the power minus s. We take minus is common. So when we take is minus is common, and we also take t as a common. तो t यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं, और मैंने माइनस भी बाहर ले लिया. तो माइनस जब बाहर लिया तो s पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, और दोनों में से हमने t भी निकाला, और यहाँ पे आएगा dt. अगेन इंटीग्रेशन का फार्मूला जो हमने पिछले रिजल्ट में यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x अपॉन a, वो यहाँ पे यूज करेंगे. तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e टू द पावर माइनस s माइनस a अपॉन माइनस s माइनस c, t का कोएफिशिएंट, और लिमिट्स क्या है इसकी, 0 टू इन्फिनिटी. इसके बाद लिमिट्स कहाँ पे है, t पे है, सिर्फ यहाँ पे t पे लिमिट्स है. तो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन s माइनस a, और यहाँ पे लिमिट पुट कर दो. इन्फिनिटी अगर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस, और t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी. तो ये हो गया e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी. और 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, t इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आपको मिलेगा ये e टू द पावर 0. तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन s माइनस a, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, और e टू द पावर 0 इज 1. सो माइनस माइनस प्लस, सो वी गेट 1 अपॉन s माइनस a. ये यहाँ पे मिल गया हमको सेकंड रिजल्ट. तो हमारा सेकंड रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ पे लाप्लास ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a. ओके,
लाप्लास ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a। तो ये हमने सेकंड रिजल्ट यहाँ पे प्रूव कर दिया। नाउ थर्ड, f of t is equal to t raised to the power n, then the Laplace transformation is what? So again we use a definition, and by using definition we can write directly Laplace of t raised to the power n. So Laplace of t raised to the power n is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st. The formula is e to the power minus st into f of t. And what is the value for f of t? It is a t raised to the power n dt. Now to evaluate this integral, we have to make some substitution here. ये इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा डायरेक्ट? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म और इसको बोलेंगे हम सेकंड टर्म। और इंटीग्रेशन अगर पास लगाएंगे आप, तो पास में क्या होगा, कभी ना कभी वो टर्मिनेट होना चाहिए। मतलब टर्मिनेट कब होगी? इंटीग्रेशन तो कभी जीरो होता नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन मतलब क्या है? कलेक्शन। तो इंटीग्रेशन तो कभी जीरो होता नहीं। जीरो क्या हो सकता है? डेरिवेटिव जीरो हो सकता है। तो डेरिवेटिव जीरो लेने के लिए ये फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकलता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? n इंटू, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डेरिवेटिव रहेंगे आपको। डेरिवेटिव निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि पावर कम कम होती जाएंगे और देयर इज nth डेरिवेटिव बिकॉज द पावर इज n। सो इतने डेरिवेटिव निकालना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या करते, इसीलिए हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एस टी इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल पुट करेंगे, सपोज यू। सो पुट एस टी इज इक्वल टू यू। तो ये डेफिनाइट इंटीग्रल है। तो जब भी डेफिनाइट इंटीग्रल में आप कोई सब्स्टिट्यूशन कर सकते, तो उसकी लिमिट भी आपको देखना है कि लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो t की लिमिट से, तो t की लोअर लिमिट कितनी है? 0। तो t इक्वल टू 0 अगर होगा, और t किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? u में कन्वर्ट करेंगे, तो u कितना होगा? तो u की वैल्यू अगर t अगर 0 पुट करेंगे तो s इंटू 0 कितना मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। तो ये 0 हो गया। और बाद में अपर लिमिट कौन सी है? इन्फिनिटी है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हम पुट करेंगे तो u कितना मिलेगा? इन्फिनिटी इंटू एस, दैट इज इन्फिनिटी। मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। और एस टी इज इक्वल टू यू मिल गया आपको, तो इसको डिफरेंशिएट करके भी निकालना है। तो एस टी इज इक्वल टू यू मिल जाने के बाद टी की वैल्यू क्या होगी हमारी? सो टी मिलेगा आपको यू बाय एस। टी क्या मिलेगा? यू बाय एस। और इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, तो डी टी, डेरिवेटिव ऑफ टी इज डी टी, डेरिवेटिव ऑफ यू क्या रहेगा? यू इज अ वेरिएबल, यू डी यू, और एस तो कांस्टेंट है, तो एस एज इट इज। तो ये पूरे सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे रखने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये यूज करते हैं तो आपको मिलेगा लिमिट में कोई चेंज नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी है, e टू द पावर माइनस एस टी, एस टी की जगह पे क्या है? u, तो ये हो गया माइनस u। बाद में क्या कर रहे हैं हम? t को u में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम में कहीं पर भी t नहीं दिखना चाहिए, तो t है यहाँ पर। तो t की वैल्यू क्या निकाली हमने? u बाय एस। तो यहाँ पर u बाय एस पुट करेंगे, तो u बाय एस का पावर कितना है? n है। और dt कितना है? du बाय s, which is equal to इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अभी यहाँ पे हम इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u है, तो u की टर्म सेपरेट करेंगे और s की टर्म सेपरेट करेंगे। तो u की टर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे u की टर्म कौन सी है? e टू द पावर माइनस u है। बाद में u का पावर कितना है? n। इसको सेपरेट करेंगे तो s का पावर भी कितना हो जाएगा? अपॉन में n हो गया। और यहाँ पे du है और यहाँ पर क्या है? s है। So this can be written as 0 to infinity e to the power minus u, u to the power n अपॉन s का पावर क्या है? n, और यहाँ पे कितना है? 1। तो ये टोटल हो जाएगा n प्लस 1 du। सो इंटीग्रेशन अभी विथ रिस्पेक्ट टू u है, तो ये s तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। सो 1 अपॉन एस रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u, u टू द पावर n डी। अभी प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको कोई सॉल्व करने का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि सॉल्व तो हम इजीली कर लेंगे। लेकिन ये सॉल्व करने के लिए आपको एक रिजल्ट मालूम चाहिए जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। और फर्स्ट ईयर में बता देता हूँ मैं कहाँ पे पढ़ा है आपने पढ़ा होगा गामा बीटा फंक्शन में। तो गामा बीटा फंक्शन में एक रिजल्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e to the power minus x into x raised to the power n minus 1 dx is equal to gamma of n। ये हमारे पास एक रिजल्ट है
गामा ऑफ एन। तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट गामा ऑफ एन होगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है गामा और बीटा फंक्शन में। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप e टू द पावर वेरिएबल कौन सा है हमारा x है, तो यहाँ पे u है, तो e टू द पावर माइनस एक्स की जगह पे e टू द पावर माइनस यू हो गया। यहाँ पे वेरिएबल का पावर n माइनस वन है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कौन सा है n है। तो इसमें थोड़े चेंजेस हमको करने हैं, तो चेंजेस क्या करेंगे हम, n माइनस वन का फॉर्म होना आपको, तो n माइनस वन का फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे हम s रेस टू द पावर n प्लस वन e टू द पावर माइनस u रेस टू द पावर n कैन बी रिटन एज n प्लस वन माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, प्लस वन माइनस वन के एडजस्टमेंट, और लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। तो अभी यहाँ पे देखिए आप, तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर n प्लस वन, और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी आ गया, e टू द पावर माइनस यू भी है, n माइनस वन भी है, तो गामा ऑफ n है, तो यहाँ पे n प्लस वन है, तो यहाँ पे हो गया गामा ऑफ n प्लस वन। और एक रिजल्ट और है हमारे पास, गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू कितना रहता, n फैक्टोरियल, सो विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू द पावर n प्लस। नेक्स्ट फोर्थ, if f of t is equal to sin 80, then we have to find the Laplace transformation of f of t. So we already find the Laplace transformation of 1 t raised to the power n and e to the power 80 by using a definition. So to solve the Laplace transformation of sin 80, we have two methods. One is by using a direct definition, or second is by using a previous result. So here by using a definition, it is difficult because there is a product of two terms involved and we use integration by parts. But when we use a previous result, then it is very easy to evaluate the Laplace transformation of sin 80. So यहाँ पे हम जो sin 80 का लाप्लास निकालेंगे वो पहले तीन रिजल्ट का यूज करके, इस तीन में से कोई ना कोई रिजल्ट यूज होगा, वो यूज करके इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालेंगे। सो वी नो दैट, आपको ये टर्म मालूम होगी, फर्स्ट ईयर में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, तो उसमें एक फार्मूला था, वी नो दैट e टू द पावर ix माइनस e टू द पावर माइनस ix अपॉन 2y इज इक्वल टू साइन x। ये साइन x का फार्मूला है। सर्कुलर फंक्शन अगर इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपको, तो साइन x का फार्मूला क्या है, e टू द पावर ix माइनस e टू द पावर माइनस ix बाय 2y। तो ये फार्मूला यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 80 की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 80 के वैल्यू क्या रहेंगे इस फार्मूला का यूज करके, e टू द पावर i80 माइनस e टू द पावर माइनस i80 अपॉन ट्वाइस। अभी क्या करेंगे, हम दोनों साइड से लाप्लास लेंगे, तो टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड, so Laplace of sin 80 is equal to Laplace of e to the power i80 minus e to the power minus i80 upon twice i। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो टर्म है ये आएगी Laplace of sin 80 इधर की साइड इक्वल टू, यहाँ पे 2y कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ट्वाइस है बाहर ले लिया हमने, और यहाँ पे जो लाप्लास है ये दो टर्म पे हम ऑपरेट करेंगे। तो पहली टर्म आएगी लाप्लास ऑफ e टू द पावर i80 और दूसरी टर्म आएगी लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस i80। ओके, अभी हमने जो रिजल्ट कुछ देर पहले सेकंड रिजल्ट एक प्रूव किया है कि अगर f ऑफ t e टू द पावर 80 है तो लाप्लास ऑफ e टू द पावर 80 कितना रहता, 1 अपॉन s माइनस e। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, 1 अपॉन 2y एज इट इज इन ब्रैकेट e टू द पावर i80 का लाप्लास क्या होगा, अगर t का कोएफिशिएंट a है तो माइनस a हो गया, t का कोएफिशिएंट i है तो ये आएगा 1 अपॉन s माइनस i माइनस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस होगा फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 1 अपॉन s प्लस i, सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस i इन ब्रैकेट, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी, तो 1 इंटू एस प्लस आई इज एस प्लस आई माइनस 1 इंटू एस माइनस आई इज एस माइनस आई अपॉन इनका प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे टर्म मिलेगी आपको।
सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस आई इन ब्रैकेट। अभी यहाँ पे देखेंगे आप तो s माइनस एस कैंसिल हो गया और i माइनस माइनस प्लस आई, मतलब ये हो गया ट्वाइस आई अपॉन, यहाँ पे क्या होगा आई स्क्वायर इज -1 तो माइनस माइनस प्लस, ट्वाइस है कैंसिल, सो वी गेट a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक और रिजल्ट मिल गया लाप्लास ऑफ साइन ए टी का। तो यहाँ पे हम लिख सकते फिर लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट, सिमिलर टू साइन ए टी we have to find the Laplace of sin h at also. So there is a some difference between sin at and sin ht, but if you know the formula for sin at, so we can directly write the formula for sin h at. So we try to solve the Laplace transformation of this with the help of previous result. जैसे हमने फोर्थ रिजल्ट प्रूव किया था वैसे इसको हम प्रूव करेंगे। तो अभी जो फार्मूला है sin h at के लिए क्या होगा, तो we know that sin h at की वैल्यू क्या रहेंगी, e टू द पावर at माइनस e टू द पावर माइनस at अपॉन 2। साइन at क्या रहता है, यहाँ पे i था और अगर हाइपरबोलिक है तो i निकल जाएगा तो i नहीं रहेगा। तो इसका हमको लाप्लास निकालना है तो दोनों साइड से हम लाप्लास लेंगे। तो लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी इज इक्वल टू आएगा लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी माइनस e टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2y। यहाँ से जो 2 है वो कॉमन लेंगे हम, ये 1/2 बाहर ले लिया कांस्टेंट है तो, और इसको ऑपरेट करेंगे। तो लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी पहली टर्म और दूसरी टर्म होगी लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी। नाउ अगेन हमारे पास जो रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट है हमारे पास, लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस ए। लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी इज इक्वल टू s माइनस ए, तो वो रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो 1/2 लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी इज 1 अपॉन s माइनस ए, और लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी क्या होगा फिर 1 अपॉन s प्लस ए। ठीक, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 इंटू एस प्लस ए, ये हो गया s प्लस ए, ये -1 इंटू एस इज माइनस एस, और माइनस माइनस प्लस ए अपॉन ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। नाउ दिस एस एस कैंसल और ए ट्वाइस ए, तो वी गेट ट्वाइस ए अपॉन 2 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2 कैंसल, सो वी गेट ए रिजल्टेंट वैल्यू इज एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिला वो रिजल्ट था लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोनों में क्या फर्क है, अगर हाइपरबोलिक है तो यहाँ पे नेगेटिव है, और हाइपरबोलिक नहीं है सर्कुलर है तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। तो सिमिलर टू साइन देयर इज आल्सो द रिजल्ट फॉर कॉस। तो कॉस के लिए कैसे करना है, तो वही प्रोसीजर हम यूज करेंगे यहाँ पर जो साइन के लिए हमने फॉलो की थी। तो साइन के लिए जो प्रोसीजर फॉलो की थी, मतलब बाय यूजिंग अ सर्कुलर फंक्शन एंड बाय यूजिंग अ प्रीवियस रिजल्ट वी कैन फाइंड। तो यहाँ पे cos ए टी का फार्मूला लिखेंगे हम। सो वी नो दैट cos ए टी इज इक्वल टू ए टू द पावर आई ए टी माइनस e टू द पावर माइनस आई ए टी अपॉन यहाँ पे 2 रहेगा, सिर्फ cos में ट्वाइस होता, बाकी फार्मूला साइन का ही है। दोनों साइड से लाप्लास लेंगे, सो लाप्लास ऑफ cos ए टी इज इक्वल टू आएगा लाप्लास ऑफ e टू द पावर आई ए टी माइनस e टू द पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 1/2 को हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे आएगा लाप्लास ऑफ e टू द पावर आई ए टी। तो जैसे भी हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था, इसका लाप्लास क्या होगा s माइनस आई, और इसका लाप्लास क्या होगा s प्लस आई। इसको सॉल्व कर लो, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू दिस टर्म, तो ये हो गया s प्लस आई, और -1 इंटू एस इज माइनस एस, और माइनस माइनस प्लस आई अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद बोलेगा। सो विच इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से
cos 80 में यहाँ पे प्लस रहता है, sin 80 में क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस, यहाँ पे भी क्या रहेगा प्लस, तो ये प्लस होने के बाद यहाँ पे प्लस और यहाँ पे रहेगा माइनस, तो ये आए आए यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो s प्लस एस कितना हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस एस अपॉन ये रहेगा एस स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1 तो माइनस माइनस प्लस इट इज ए स्क्वायर, 2 कैंसिल, सो वी गेट s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर साइन और कॉस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो साइन और कॉस का रिजल्ट जो था, साइन में क्या था a अपॉन था और कॉस में क्या है s अपॉन, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो साइन होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और कॉस होगा तो यहाँ पे वेरिएबल आएगा। सिमिलरली इजीली हम cos h80 के लिए निकाल सकते हैं, तो ये मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं इसका सिर्फ आंसर बताऊंगा आपको। सो लाप्लास ऑफ cos h80, इसका आंसर रहेगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। cos 80 में पॉजिटिव था तो cos h80 में क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ये जो है ये कुछ रिजल्ट है जिसका यूज होगा आपको आगे जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ब्रीफली वो रिजल्ट लिख देता हूँ एक बार, और आपको क्या करना है, अगर प्रूफ नहीं आता है निकालना, लेकिन ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि इसका आगे जाकर यूज होगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो पहला जो रिजल्ट है वो है लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1 का आंसर है 1 अपॉन एस। दूसरा रिजल्ट है लाप्लास ऑफ e टू द पावर 80, इसका आंसर कितना है 1 अपॉन एस माइनस ए। इसमें से हम तीसरा रिजल्ट लिखा लेंगे लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 80, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होगा s प्लस ए आएगा। फोर्थ रिजल्ट है लाप्लास ऑफ साइन 80, अगर साइन 80 है तो यहाँ पर कांस्टेंट a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिफ्थ है लाप्लास ऑफ साइन h80, हाइपरबोलिक है तो सिर्फ साइन को आपको चेंज करना है बीच में का, मतलब एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। सिक्स रिजल्ट है cos 80, cos 80 है तो यहाँ पे क्या रहेगा ऊपर वेरिएबल मतलब s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और सेवंथ रिजल्ट जो है वो है लाप्लास ऑफ cos h80 इज इक्वल टू s अपॉन यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक रिजल्ट और बचा यहाँ पे लाप्लास ऑफ t रेज़ टू द पावर n भी निकाला था हमने, तो इसका फार्मूला क्या था n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर n प्लस 1। तो ये सभी रिजल्ट जो है कम से कम ये 8 रिजल्ट वो आपको याद रखने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कैसे निकाला, कैसे निकालना है, क्या करना है मैंने आपको बताया, कुछ डेफिनेशन यूज करके निकाला हमने और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल का फार्मूला यूज करके वो सॉल्व किया। सो इसके बाद जो होगा वो रहेंगे इसके प्रॉपर्टीज और इसके प्रॉब्लम, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।